All the students join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Remaining students join the class quick fast. Lecture will be started very soon. So let's start the lecture. I will share the screen now. Okay. In previous class, we have to study about the frequency modulation, definition of frequency modulation, and the various parameter of frequency modulation, like as the modulation index, bandwidth, power, and afterward we have already discussed about the difference between the frequency modulation and phase modulation, and frequency modulation and amplitude modulation. Okay. Today we will discuss about the FM generation or FM modulator. So basically there are the two methods of FM generation. First one is the direct method, second one is the indirect method. First one in case of direct method, which is also known as the reactance modulator. Reactance modulator is responsible to generate a frequency modulation. So let's see in this one circuit diagram of reactance modulator. It is composed by using the various component. There is the components are the resistance R, capacitance C, and FET. Okay, and input voltage V in, output voltage is V. So the first one equation, that is the Z out. Z out is the output impedance, that is the ratio of voltage divided by current. Output voltage divided by the current, that is the output impedance. Next one parameter is the GM. GM is the transconductance of this one FET. Transconductance of FET. This one, the transconductance of FET. This one. This one. This is the FET. So the transconductance of this one FET is denoted by this one GM equals to I upon VM. VM is the input voltage current, and input current I, and the input voltage VM, that is applied to the FET. So the transconductance GM equals to I upon VM. Okay. Next is the Vm equals to R divided by R plus 1 upon j omega C into V. ये वाला जो expression, how we can determine this one expression, Vm is equals to R divided by R plus 1 upon j omega C into V. Vm is the input voltage, capital V is the output voltage. Okay. So the input voltage ratio of the output voltage, that is the R upon R plus 1 upon j omega C. ये actually कैसे determine होगा? For example, as we know that input voltage V लाया, resistance 2 connected are in series formation, R1 and R2. R1 के across voltage क्या है? V1. R2 के across voltage V2. So V1 का expression कैसे determine कर सकते हैं? V1 equals to R1, जो R1 के across जो V1, R1 divided by total resistance R1 plus R2 into V. V1 equals to R1 divided by total resistance R1 plus R2 into V. Similar यही अप्रोच कहाँ लगाइए? इस वाले एक्सप्रेशन में, इस वाले एक्सप्रेशन में. इसमें भी क्या करा है? इस वाले केस को अपन जस्ट स्टडी करें. Vm एक्चुअली किसके अक्रॉस है? R के अक्रॉस. Vm इस किसके अक्रॉस है? R के अक्रॉस. तो R डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, R और C किस में है? सीरीज फॉर्मेशन में. तो R डिवाइडेड बाय R प्लस XC, ये एक्चुअली क्या है? दिस वन इज द reactance of C, capacitor XC, that is the XC. So R divided by R plus XC into total voltage V. सेम वही अप्रोच से अपन आइडेंटिफाई कर लिया, जैसा अपन उसमें कैलकुलेट कर रहे हैं R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2. R1 तो क्या है यहाँ पे? R है. R2 क्या है? XC.
R2 क्या है यहाँ पे XC, XC is the reactance of capacitor, okay, into V, capital V. So Vm is identified. Second one expression identify हो गया। ये वाला एक्सप्रेशन अपन ने इक्वेशन नंबर 2 आइडेंटिफाई कर ली। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करना है बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एंड सिंप्लीफाई Vm की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। Vm, the value of Vm is put in इक्वेशन नंबर फर्स्ट, Gm इस वाली इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में पुट ऑन करना है Vm की वैल्यू पुट ऑन करी, दैट इज द Gm इक्वल्स टू I अपॉन R प्लस J 1 अपॉन J ओमेगा C डिवाइडेड बाय V। ओके, 1 अपॉन J ओमेगा C को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस के J XC से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। XC इक्वल्स टू, वेयर XC इक्वल्स टू क्या है, XC इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C, 1 अपॉन ओमेगा इंटू C, ठीक है। जैसे XL क्या होता है, XL इक्वल्स टू क्या लिखते थे, ओमेगा है, ये अपन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। XL इक्वल्स टू ओमेगा L, XC इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C। सिंप्लीफाइड करा, ओमेगा C को पुट ऑन ऊपर लेके गए, J को ऊपर लेके तो क्या आ गया, R माइनस J XC डिवाइडेड बाई R इंटू GM। एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड करा, V अपॉन I एक्चुअली क्या है, Z आउट, सो Z आउट इक्वल्स टू V अपॉन I इज इक्वल्स टू R माइनस J XC डिवाइडेड बाई R इंटू GM। ओके, अब कंडीशन क्या है इसमें, नेक्स्ट पुट ऑन करिए, द कंडीशन इज द वैल्यू ऑफ C इज लेस देन R। तो C की वैल्यू कम करेंगे तो XC की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। C की वैल्यू अपन कम करेंगे तो XC की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, XC इज ग्रेटर देन R। C की वैल्यू लेस देन R है, तो उस केस में XC क्या हो जाएगा, XC इज ग्रेटर देन R। अब इस वाले एक्सप्रेशन में XC इज ग्रेटर देन R, तो R विल बी नेग्लेक्ट, R को नेग्लेक्ट करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, माइनस के 1 अपॉन J ओमेगा C डिवाइडेड बाय R इंटू GM। J को नीचे पुट ऑन कर दिया तो 1 अपॉन J GM R, और XC की जगह वैल्यू क्या करेगी, ओमेगा C, तो 1 अपॉन J ओमेगा GM इंटू R। ओके, ये वाला एक्सप्रेशन आ गया फाइनल, ये इंपॉर्टेंट है। Z आउट इक्वल्स टू 1 अपॉन J GM R ओमेगा इंटू C। So the Z out equals to 1 upon J omega GM into RC। GM into RC को क्या पुट ऑन कर दिया अपन ने, C equivalent। So C equivalent equals to GM into RC। So 1 upon J omega C equivalent। Okay, अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो ना, VM को वेरी करें, अगर VM अगर वेरी है तो अल्टीमेटली क्या वेरी करेगा, GM। एक्सप्रेशन कौन सा है, ये वाला एक्सप्रेशन है। अगर Vm को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखें, Vm को वेरी करें, इनपुट वोल्टेज को वेरी करें तो क्या चेंज होगा, ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ FET, ठीक है, Gm वेरी होगा। इफ अगर Gm वेरी है तो ये C इक्विवेलेंट वेरी करेगा, इस वाली इक्वेशन से देखा C इक्विवेलेंट वेरी करेगा, और C इक्विवेलेंट अगर कैपेसिटेंस चेंज होगा तो अल्टीमेटली क्या चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी F इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। C को आप वेरी करोगे तो क्या चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो डेफिनेशन अपनी FM की बेसिक डेफिनेशन क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल इज चेंज एज अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी, यहाँ फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है, और फ्रीक्वेंसी वेरी किसके रेस्पेक्टिव कर रही है, VM के रेस्पेक्टिव, और VM एक्चुअली क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो FM जनरेट हो गया, इज इट क्लियर। VM को वेरी करें तो VM के रेस्पेक्टिव क्या चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। सो द F वेरीज एज अकॉर्डिंग टू द VM इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल। ओके, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने क्या करा, द VM इनपुट दे ही रहे थे अपन, रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर सर्किट अपन ने यहाँ प्लेस कर दिया। सर्किट जैसे प्लेस करा तो वेरिएबल चीज क्या है यहाँ पे, C इक्विवेलेंट। ये C इक्विवेलेंट क्या आया, वेरिएबल C इक्विवेलेंट को अपन ने किसके पैरेलल कनेक्ट करा, L और C के पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो C और C इक्विवेलेंट को कनेक्टेड करेंगे पैरेलल में तो क्या हो जाएगा, C डैश इक्वल टू C इक्विवेलेंट प्लस C। पैरेलली अगर अपन कैपेसिटेंस कनेक्ट करें तो दोनों का क्या होगा, एडिशन, है ना।
C1 और C2 को पैरेलली कनेक्ट करें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C क्या आएगा, C1 प्लस C2. सो C डैश इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट प्लस C. अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आएगी, F इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट L C डैश, और C डैश की जगह अपन ने क्या रख दिया, C इक्विवेलेंट प्लस C. तो टोटल आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आई, इनपुट Vm था, आउटपुट जो निकल के आया इसका फ्रीक्वेंसी का, उसका एक्सप्रेशन क्या आया, F इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट L इंटू C इक्विवेलेंट प्लस C. अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, समझने वाली जो कंसेप्ट है, अगर Vm को वेरी करें, Vm को अगर अपन वेरी करें, क्योंकि इनपुट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है, वेरिएबल होगा, पॉजिटिव साइकिल आएगी, नेगेटिव साइकिल आएगी, पॉजिटिव साइकिल आएगी, नेगेटिव साइकिल आएगी. तो Vm को वेरी करें तो अल्टीमेटली क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे C इक्विवेलेंट चेंज होगा, है ना. Vm को वेरी करें तो क्या चेंज होगा, C इक्विवेलेंट वेरी होगा, और C इक्विवेलेंट अगर अपन वेरी करेंगे तो अल्टीमेटली क्या वेरी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी, दैट इज द FM. तो इस तरह से अपन FM को जनरेट कर सकते हैं इसमें, ठीक है. अब इसके स्टेटमेंट है कुछ, बाय दिस मेथड वी कैन जनरेट ओनली नैरो बैंड FM. दो टाइप के FM होते हैं, एक नैरो बैंड FM और एक वाइड बैंड FM. ये अपन आगे स्टडी करेंगे. तो बेसिकली ये जो रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर है किस तरह का FM जनरेट करेगा, नैरो बैंड FM. दैट विल बी जनरेट द नैरो बैंड FM. By using this method we have to generate the narrow band FM. ये narrow band FM जनरेट कर सकते हैं, ठीक है. दूसरा इसमें क्या है स्टेटमेंट, frequency stability of this circuit very less. The frequency can change easily by any variation. Frequency stability इसमें very less रहेगी. Why? Because of that यहाँ पे L एक आप C कंपोनेंट ले रहे हो जब रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर अपन डिजाइन कर रहे हैं, रेजिस्टिव कंपोनेंट अपन ले रहे हैं. ये दोनों कंपोनेंट क्या है, टेम्परेचर सेंसिटिव है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है. तो व्हेन द टेम्परेचर एनी अदर पैरामीटर चेंज, तो अल्टीमेटली क्या R और C की वैल्यू चेंज होगी. R और C की वैल्यू चेंज होगी तो उस केस में क्या होगा, C इक्विवेलेंट वेरी करेगा. C इक्विवेलेंट वेरी करेगा तो फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी. तो फ्रीक्वेंसी की स्टेबिलिटी नहीं है, फ्रीक्वेंसी इज मच मोर इन अ स्टेबल फॉर्म, ठीक है. तो स्टेबल फॉर्म में नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज द फ्रीक्वेंसी इज इजीली चेंज, इजीली फ्रीक्वेंसी नॉट मच मोर स्टेबल फॉर्मेशन, ठीक है. क्यों है अनस्टेबल फॉर्म में, क्यों है, बिकॉज ऑफ दैट दीज आर इट इज यूजिंग द रेजिस्टिव एंड कैपेसिटिव कंपोनेंट, और रेजिस्टिव और कैपेसिटिव कंपोनेंट पे किसका इफेक्ट आएगा, टेम्परेचर का, एनवायरनमेंट का, ह्यूमिडिटी का. तो ये सारे फैक्टर्स हैं. तो उसमें क्या होगा, R और C की वैल्यू क्या करेगी, फ्रीक्वेंटली वेरी करेगी. R और C की फ्रीक्वेंटली वेरी करेगी तो उससे अल्टीमेटली क्या वेरी करेगा, C इक्विवेलेंट वेरी करेगा. C इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंटली वेरी करेगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या करेगी, फ्रीक्वेंटली वेरी करेगी. तो फ्रीक्वेंटली वेरी करेगी, दैट इज नॉट इन स्टेबल फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. So we want to improve its frequency variation, its frequency stability. We have to use the AFC, automatic frequency control. Automatic frequency control. We have to using the automatic frequency control. अब ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर में क्या लिया, इनपुट फ्रीक्वेंसी, रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर, रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर किससे कनेक्ट करा, मास्टर ऑसिलेटर, बफर एंड लिमिटर, ठीक है. लिमिटर के बाद अपन ने इसमें इनपुट किसमें दिया, मिक्सर में, ठीक है. मिक्सर का एक और इनपुट क्या है, क्रिस्टल ऑसिलेटर. क्रिस्टल ऑसिलेटर और रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर के आउटपुट को अपन ने किसमें दिया, मिक्सर में. मिक्सर के आउटपुट में क्या आया, IF. IF इज द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर को किसमें दे दिया, फेज डिस्क्रिमिनेटर में. तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी अनस्टेबल फॉर्मेशन है वो किस में आ जाएगी, स्टेबिलिटी वाले फॉर्मेशन में. तो फ्रीक्वेंसी शुड बी स्टेबलाइज्ड बाय यूजिंग द ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल यूनिट. अब नेक्स्ट है नैरो बैंड FM एंड वाइड बैंड FM, ठीक है. डिफरेंस बिटवीन द AM एंड नैरो बैंड FM, in both cases omega C and omega C plus minus omega M are present. मतलब अगर नैरो बैंड FM को AM से कंपैरिजन करें तो दोनों में क्या सिमिलरिटी आएगी
कि दोनों ही केस में बैंड कितने आ रहे हैं, दो, अपर साइड बैंड ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, लोअर साइड बैंड ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। ये दोनों में सिमिलरिटी देख सकते हैं, ठीक है, बैंडविड्थ दोनों में सेम आएगी। बट इन केस ऑफ एएम कैरियर एंड साइड बैंड आर इन फेज, in narrow band FM side bands are in 90 डिग्री आउट ऑफ फेज। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि AM के केस में कैरियर और साइड बैंड, जो साइड बैंड्स है वो किस फेज में रहेंगे, इन फेज। इन फेज दैट मींस फेज डिफरेंस इज 0। बट इन केस ऑफ नैरो बैंड FM जो साइड बैंड है उनके बीच में कितना फेज डिफरेंस है, 90 डिग्री का। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नैरो बैंड FM एंड AM। क्लियर? एक और एनालिसिस है, इन केस ऑफ नैरो बैंड एफएम मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज लेस देन 1। अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स अपन लेस देन 1 करें तो उसके बैंडविड्थ निकालें अपन नैरो बैंड एफएम की फॉर्मूले में पुट ऑन करें तो उसकी बैंडविड्थ कितनी आएगी वो देखो, यहाँ एनालिसिस करते हैं। तो बैंडविड्थ इक्वल टू 2 इंटू डेल प्लस एफएम, ठीक है। एमएफ क्या है, डेल अपॉन एफएम। सो द 2 एफएम कॉमन आउट ले लिया, एमएफ प्लस 1। अब एमएफ क्या है, लेस देन 1 है, तो बैंडविड्थ कितनी आ गई, 2 इंटू एफएम। और 2 एफएम बैंडविड्थ एक्चुअली किस में रहेगी, एएम में। तो नैरो बैंड एफएम इज जस्ट सिमिलर टू एएम। बैंडविड्थ दोनों में सेम है, ठीक है ना, बैंडविड्थ दोनों केस में सेम आ रही है। कंडीशन कौन सी लगाई है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स एमएफ इज लेस देन 1। उस केस में दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब दूसरा क्या है, नैरो बैंड एफएम एंड वाइड बैंड एफएम, दोनों को अपन कंपैरिजन करें। नैरो बैंड एफएम और वाइड बैंड एफएम में क्या डिफरेंस है, दोनों के फर्स्ट डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी डेविएशन। इसमें फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या आएगा, मिनिमम 25 हर्ट्ज, मैक्सिमम 3 किलोहर्ट्ज। बट इन केस ऑफ वाइड बैंड एफएम डेविएशन कितना है, 75 किलोहर्ट्ज। तो डेविएशन ज्यादा है इन केस ऑफ वाइड बैंड एफएम। पहला डिफरेंस ये हुआ। दोनों के केस में एफएम सेम है। सेंटर फ्रीक्वेंसी देखें, एफसी। एफसी क्या है, नैरो बैंड एफएम में 200 किलोहर्ट्ज है, जबकि वाइड बैंड एफएम में एफसी कितना है, 91.2 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी सो मच हाई एज कंपेयर टू नैरो बैंड एफएम। वाइड बैंड एफएम में फ्रीक्वेंसी किस रेंज में आ रही है, मेगाहर्ट्ज में। नैरो बैंड एफएम में फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 200 किलोहर्ट्ज वाली रेंज में। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नैरो बैंड एफएम एंड वाइड बैंड FM। अब जनरेशन ऑफ वाइड बैंड FM बाय यूजिंग नैरो बैंड FM। तो नैरो बैंड FM को जस्ट सिंपली किसमें दे दें, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में। तो आउटपुट क्या आ जाएगा अपना, वाइड बैंड FM। ये मेथड कौन सा होगा, आर्मस्ट्रांग मेथड। सो बाय यूजिंग द आर्मस्ट्रांग मेथड वी कैन जनरेट द वाइड बैंड FM बाय यूजिंग नैरो बैंड FM। अब ये वाला डायग्राम देखें, नीचे वाले डायग्राम में सबसे इनिशियली अपन ने क्या लिया, नैरो बैंड एफएम लिया। नैरो बैंड एफएम को किसमें दे दिया, 6 डबलर, मतलब फ्रीक्वेंसी को 6 टाइम मल्टीप्लाई करा, 6 टाइम डबल करा। तो उस केस में क्या आएगा, जैसे इनपुट FC1 200 किलोहर्ट्ज था, 25 हर्ट्ज था, तो FC2 कितना हो गया, 12.8 मेगाहर्ट्ज। डेविएशन कितना है, 1.6 किलोहर्ट्ज। नेक्स्ट गिवन टू मिक्सर, और मिक्सर किससे कनेक्टेड है, क्रिस्टल ऑसिलेटर से। क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या है, 10.9 मेगाहर्ट्ज। मिक्सर का आउटपुट क्या आएगा, दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। तो एक में इनपुट क्या है, 12.8 मेगाहर्ट्ज है, क्रिस्टल ऑसिलेटर की क्या है, 10.9 मेगाहर्ट्ज है। तो डिफरेंस कितना निकल के आया, 1.9 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। डेविएशन 1.6 किलोहर्ट्ज था, आउटपुट भी कितना आया, डेविएशन 1.6 किलोहर्ट्ज। तो एक्चुअली इसने क्या जनरेट करा, डिफरेंस जनरेट करा। डिफरेंस किसका है, 12.8 मेगाहर्ट्ज माइनस 10.9 मेगाहर्ट्ज, डिफरेंस इज द 1.6 किलोहर्ट्ज। नेक्स्ट अपन ने किससे मल्टीप्लाई कराया, 48 से। 48 का मीनिंग क्या रहेगा, 2⁴ into 3। दैट मींस 4 तो डबलर है, फ्रीक्वेंसी डबलर, और 1 क्या है, ट्रिपलर है। 4 फ्रीक्वेंसी डबलर है, 1 फ्रीक्वेंसी ट्रिपलर है। तो आउटपुट कितना आ गया, FC = 91.2 मेगाहर्ट्ज, और डेविएशन कितना आ गया, 75 किलोहर्ट्ज। और ये जो कंडीशन है वो एक्चुअली किसके रिलेटेड है, वाइड बैंड एफएम से। तो इनपुट नैरो बैंड एफएम था, 6 डबलर काम में लिए, मिक्सर काम में लिया, और 4 डबलर और 1 ट्रिपलर काम में लिया। तो आउटपुट क्या जनरेट हो गया, वाइड बैंड एफएम। So by using the Armstrong method, we have to generate the wide band FM by using narrow band FM and
frequency multiplier along with the mixer and crystal oscillator. ठीक है, अब नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल स्टडी करते हैं, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं. एन एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल वेयर द ओमेगा सी कैरियर फ्रीक्वेंसी इज 2 into 10⁵ रेडियन पर सेकेंड. एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, 10 cos of omega ct plus 5 sin 3000 t plus 10 sin 2000 pi into t. Determine the power, frequency deviation, deviation ratio, phase deviation, estimate the bandwidth of angle modulated signal. सबसे पहले क्या कैलकुलेट करनी है, पावर. पावर कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर, कॉस और साइन का जब अपन पावर कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना आएगा 1/2. तो 10 का स्क्वायर इंटू 1/2, 10 का स्क्वायर इंटू 1/2 दैट इज द 50 पावर. सेकेंड वन इज द फ्रीक्वेंसी डेविएशन. फ्रीक्वेंसी डेविएशन कैसे निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी माइनस सेंटर फ्रीक्वेंसी और कैरियर फ्रीक्वेंसी. तो ये इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है, इसमें से कैरियर फ्रीक्वेंसी वाला कंपोनेंट हटा दिया तो क्या रिमेनिंग वाला टर्म रह गया 5 sin 3000 t plus 10 sin 2000 pi t. दैट इज द फ्रीक्वेंसी डेविएशन. 10 sin 3000 t plus 20 pi cos 2000 pi t. मतलब इसका क्या है एक्चुअली, जब अपन इसका डिफरेंशिएशन करें है ना, तो कॉस का क्या हो जाएगा साइन, साइन का क्या हो जाएगा कॉस वाली फॉर्मेशन आ जाएगी, कांस्टेंट इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 into 3000 दैट इज द 15000 cos 3000 t. 2000 पाई आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2000 पाई cos 2000 पाई t. तो ये डेविएशन फाइंड आउट हो गया. नेक्स्ट मॉड्यूलेशन इंडेक्स अपन कैसे निकालेंगे, डेविएशन डिवाइडेड बाय एफएम. एफएम के रेस्पेक्टिव. अब एफएम इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन नहीं है. तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अपन कैसे डिटरमाइन करते हैं कि इस वाले केस में जो अपन सिंपली इक्वेशन शुरुआत में देखते आ रहे हैं कि tan phi equals to angle modulated is the tan is the vc होता है, ये vc cos of omega ct. और ये बाद वाले जो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स है, ये एक्चुअली क्या है मॉड्यूलेटेड सिग्नल. ये वाली जैसे अपन शुरुआत स्टार्टिंग में अपन क्लास में देखा था, तो अपन इसकी स्टडी करते हैं. तो एक्सप्रेशन ये वाला देखा था अपन, दैट इज द ओमेगा सी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इज द ओमेगा आई इक्वल्स टू ओमेगा सी प्लस kf m of t. तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या है, कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. तो सेम यही कंसेप्ट लगाया. तो फर्स्ट वाले में क्या है, ओमेगा सी द कैरियर फ्रीक्वेंसी और बाद की जो टर्म है जैसे 5 sin 3000 t plus 10 sin 2000 pi t, ये एक्चुअली क्या है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. आई बात समझ में, शुरुआत वाली टर्म क्या है कैरियर है, बाद वाली टर्म दोनों क्या है ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. अब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में दो टर्म देख रहे हैं, एक तो है sin 3000 t वाली और दूसरी है sin 2000 pi t वाली. अब फ्रीक्वेंसी जैसे अपन कैलकुलेट करें तो ओमेगा तो क्या आएगा, एक ओमेगा तो है 3000 है, दूसरा ओमेगा क्या है 2000 पाई है. अब मैक्सिमम या मेजर वाला कौन सा रहेगा 2000 पाई. तो ओमेगा एम कौन सा कंसीडर करेंगे, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज कंसीडर द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी. तो 2000 पाई क्या है ग्रेटर देन 3000, तो वी हैव टू कंसीडर द 2000 पाई इज द ओमेगा एम. अब ओमेगा एम 2000 पाई है तो एफ एम कैसे आएगा, ओमेगा एम डिवाइडेड बाई 2 पाई. 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, और 1000 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 किलो. तो ये आगे देखो, तो एम एफ इक्वल्स टू डेल अपॉन एफ एम. एफ एम क्या आएगा यहाँ पे 1000. 1000 एक्चुअली क्या है 1 किलो हर्ट्ज. ये इस तरह से एफ एम कैलकुलेट होगा, ये वैल्यू आइडेंटिफाई हो जाएगी. फेज डेविएशन भी सिंपली वही, उसका इंटीग्रल उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद बैंडविड्थ अपन कैसे निकालेंगे 2 into fm प्लस डेल. fm अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट ही कर लिया है 1000 हर्ट्ज दैट इज द 1 किलो हर्ट्ज. डेविएशन ऑलरेडी अपन डिटरमाइन कर चुके हैं, तो ये आंसर आ जाएगा बैंडविड्थ का. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज द fm डीमॉड्यूलेटर. नेक्स्ट इज द fm डीमॉड्यूलेटर. जैसे अपन मॉड्यूलेटर कर रहे हैं, मॉड्यूलेटर कहाँ करते हैं ट्रांसमीटर सेक्शन पे, डीमॉड्यूलेटर कहाँ करेंगे रिसीवर सेक्शन पे. ठीक है, तो एफएम डीमॉड्यूलेटर के लिए क्या आएगा,
there are the three type of FM demodulator. First one is the balance slope detector, second one is the Foster-Lee discriminator or phase discriminator, and third one is the ratio detector. अब तो फर्स्ट वन स्टडी करें बैलेंस स्लोप डिटेक्टर, ये वाला रहेगा बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। अब बैलेंस स्लोप डिटेक्टर में सबसे ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या रहेगी, जैसे इस सर्किट को केयरफुली देखो, इनपुट क्या है एफएम सिग्नल, जैसे रिसीवर ऑब्वियसली बात है रिसीवर के इनपुट में क्या आएगा एफएम सिग्नल आएगा, आउटपुट में क्या आएगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आएगा, मतलब एफएम सिग्नल से अल्टीमेटली क्या अपन जनरेट करें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एफएम सिग्नल इनपुट में रहेगा आउटपुट में क्या आएगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब यहाँ ऑब्जर्व करने वाली चीज देखो इस डायग्राम में, इनपुट एफएम लिया, एफएम को जस्ट ट्रांसफर करा, ट्रांसफर वाले के जो सेकंड वाला पार्ट है सेकंड वाले सेक्शन में अपन देख रहे हैं ये इंडक्टर एल है, ठीक है इंडक्टर एल है, ये किसके पैरेलल है कैपेसिटेंस सी डैश और दूसरा सी डबल डैश, ठीक है। ऊपर वाले सेक्शन में देखें तो सी डैश सीरीज में क्या कनेक्टेड है डायोड कनेक्टेड है, डायोड के बाद क्या कनेक्टेड है रेजिस्टर आर एंड कैपेसिटर C1, ओके, और C1 के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है V1 है, क्लियर। नीचे वाले सेक्शन में देखें, नीचे वाले सेक्शन में इंडक्टर के पैरेलल क्या है सी डैश है, सी डैश के बाद सीरीज में क्या कनेक्टेड है डायोड है, डायोड के बाद किससे कनेक्टेड है रजिस्टर आर और कैपेसिटर C2, C2 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है V2 है, और आउटपुट पोटेंशियल कैसे आएगा V1 माइनस V2, V0 इक्वल टू V1 माइनस V2, तो सेंटर क्या है ग्राउंड है, ग्राउंड को अपन किससे डिनोट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल, तो ऊपर वाले दोनों क्या हो गए पॉजिटिव हो गए, तो V1 माइनस V2 दैट इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वोल्टेज, V0 इक्वल टू V1 माइनस V2, बात आई समझ में। अब दूसरी चीज ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि L और C के जब भी अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन करें, ऑलवेज रिमेंबर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों को जब भी अपन पैरेलल कंबाइन करेंगे पैरेलल कनेक्टेड करेंगे तो वो एक्चुअली क्या कहलाएगा ट्यून्ड सर्किट और टैंक सर्किट, दैट इज नोन एज द ट्यून्ड सर्किट और टैंक सर्किट, ये 12th में आपने पढ़ा होगा। तो ट्यून्ड और टैंक सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी अपन कैलकुलेट करते हैं तो उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा F इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, एल क्या है इंडक्टर, सी क्या है कैपेसिटेंस, जैसे पैरेलल कंबाइन अपन करेंगे तो अल्टीमेटली एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, और उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अपन किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं F इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि ऊपर वाला कैपेसिटेंस सी डैश है, नीचे वाला कैपेसिटेंस सी डबल डैश है, ओके। तो इस केस में एक ऊपर वाला टैंक सर्किट है वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, नीचे वाला टैंक सर्किट है वो एक दूसरी फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, तो ऊपर वाला जो सर्किट है वो टैंक फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी FC प्लस डेल एफ, नीचे वाला टैंक सर्किट है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा FC माइनस डेल एफ, ओके। सर्किट समझ में आया, दो सर्किट बनाए अपन ने, ऊपर वाला एक सर्किट बनाया जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है FC प्लस डेल एफ है, नीचे वाला सर्किट बनाया, नीचे वाले सर्किट है वो पर्टिकुलर किस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट कर रहा है FC माइनस डेल एफ है। तो इस तरह का एक सर्किट अपन ने डिजाइन करा जो दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करेगा, ऊपर वाला है वो FC प्लस डेल एफ है, नीचे वाला है वो FC माइनस डेल एफ है, क्लियर हुई बात। बाकी और एक और चीज उसमें ऑब्जर्व करें, बाकी जैसे ये फ्रीक्वेंसी आगे जाएगी तो वो किससे कनेक्टेड है डायोड और R और C कॉम्बिनेशन से। अब ये अगर तुम्हें ध्यान हो अपन एक AM वाले जब चैप्टर स्टडी करा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का अपन ने डिटेक्टर वाला सेक्शन या डिमॉड्यूलेटर वाला सेक्शन अपन ने स्टडी करा था, तो उसमें एक डिटेक्टर आया था कौन सा एनवलप डिटेक्टर, है ना। एनवलप डिटेक्टर में भी क्या था यही सेम सर्किट था, वहां भी अपन क्या देख रहे थे डायोड कनेक्टेड है, डायोड को फिर किससे कनेक्ट कर रहे थे R और C के कॉम्बिनेशन से, ध्यान आया। तो उस केस में अब सेम वही अपन एनवलप डिटेक्टर था उसी को अपन ने सेम यहाँ बैलेंस स्लोप डिटेक्टर में काम ले, स्लोप जैसे नाम पीछे जुड़ा हुआ है स्लोप डिटेक्टर, तो स्लोप एक्चुअली क्या है एनवलप, तो वही कंसेप्ट वही अप्रोच अपन ने कहां में ले ली यहाँ FM के डिटेक्टर में।
बैलेंस क्यों है? बैलेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक पार्ट ऊपर और एक पार्ट नीचे है, तो दोनों को अपन ने किस फॉर्म में लिया? बैलेंस फॉर्म में। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। क्लियर हुआ? सर्किट समझ में आया? ओके। अब यहां अपन देखना है इसका सेकंड केस में, वी नॉट सेंटर फ्रीक्वेंसी है, वी नॉट की वैल्यू 0 कब आएगी? जब V1 इक्वल टू V2 हो जाए। मगर अगर कोई भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल इनपुट में नहीं आए, अगर कोई एफएम सिग्नल नहीं आ रहा है, एफएम सिग्नल नहीं आएगा तो कोई फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन नहीं रहेगा। फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन नहीं रहेगा तो V1 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? V2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। V1 V2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा तो V नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये 0 वाला केस है, ये 0 वाला केस है। अब जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, क्योंकि एफएम में एक्चुअली क्या है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पॉजिटिव है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल नेगेटिव है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। ये एफएम है। एफएम में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी, फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी, कभी वो हाई रहेगी, कभी वो लो रहेगी। तो हाई वाला केस कब आएगा? जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पॉजिटिव हाफ साइकिल का है। नेगेटिव लो कब आएगा? जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल नेगेटिव वाला है। तो ये वाला जो सेक्शन है एफ सी प्लस डेल एफ है, ये एक्चुअली कब आएगा? जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल है। ये एफ सी माइनस डेल एफ कब आएगा? जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो दैट इज द आउटपुट V naught FC plus del F, that is related to the positive cycle of the modulating signal, FC minus del F that is related to the negative half cycle of the modulating signal। तो ये आउटपुट में क्या जनरेट हो गया? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जनरेट हो गया। ये इसका ऑपरेशन रहेगा। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? देयर आर द थ्री डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, there are the three different frequency to which vary the various tuned circuit have to be adjust, so alignment is difficult। alignment difficult है क्यों? तो एक ऊपर वाले सर्किट को एडजस्ट कर रहे हैं एफ सी प्लस डेल एफ के लिए, एक नीचे वाले को एफ सी माइनस डेल एफ। तो एडजस्टमेंट, फ्रीक्वेंसी का एडजस्टमेंट क्या है यहाँ? कॉम्प्लिकेटेड है। सो अलाइनमेंट इज मच मोर डिफिकल्ट। सेकेंड, लीनियरिटी इज आल्सो लिमिटेड इन पर्टिकुलर रेंज। लीनियरिटी एक पर्टिकुलर रेंज के लिए क्या रहेगा? ये लीनियर फॉर्मेशन, ये लीनियर फॉर्मेशन। उसके बाद क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर हो जाएगा। जैसे हायर फ्रीक्वेंसी के लिए अपन इंक्रीज होंगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इस फॉर्म मोड में चली जाएगी नॉन लीनियर फॉर्मेशन। तो लीनियरिटी इज लिमिटेड एंड इट इज डज नॉट प्रोवाइड एनी एम्पलीट्यूड लिमिटर, और एक एम्पलीट्यूड लिमिटर भी इसमें अवेलेबल नहीं होगा। अब जैसे सेकंड केस गई फॉस्टर सिली डिस्क्रिमिनेटर। फॉस्टर सिली डिस्क्रिमिनेटर में क्या है? सेम वही सर्किट बना हुआ, इनपुट एफएम सिग्नल था, इधर वाले ऊपर वाले पार्ट में भी डायोड D1 है, R और C1 है, नीचे वाले सेक्शन में डायोड D2 है, R और C2 है। बस डिफरेंस क्या है कि वहां जो अपन दो ट्यून सर्किट ले रहे थे ऊपर और नीचे के लिए, ऊपर वाला ट्यून सर्किट, नीचे वाला ट्यून सर्किट, इस केस में क्या होगा? एक केवल सिंगल ट्यून सर्किट लिया अपन ने L और C डैश के कॉम्बिनेशन से, L और C डैश के कॉम्बिनेशन। तो अलाइनमेंट क्या हो गया यहाँ? मच मोर इजियर। alignment is much more easier as compared to balance slope detector। तो that is the advantage of Foster-Slee discriminator। बाकी वही सेम वर्किंग करेगा, हायर फ्रीक्वेंसी है अबव सर्किट, लोअर फ्रीक्वेंसी है बिलो सर्किट, बट ट्यून सर्किट क्या होगा? एक सिंगल फ्रीक्वेंसी पे होगा। तो अलाइनमेंट क्या हो जाएगा? मच मोर इजियर। एक और तीसरा है रेशो डिटेक्टर। रेशो डिटेक्टर का एक और एडवांटेज क्या है? जस्ट सिमिलर टू बैलेंस स्लोप डिटेक्टर और फोस्टर-सिली डिस्क्रिमिनेटर, बट इट आल्सो प्रोवाइड द एम्पलीट्यूड लिमिटर। एम्पलीट्यूड को क्या कर देगा? ये लिमिट फॉर्म में कर देगा, लिमिटेड फॉर्म में लेगा। उसके बाद क्या प्रोसेस चलेगा? स्लोप डिटेक्शन का। तो दैट इज द रेशो डिटेक्टर। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं। आज अपन ने स्टडी करी एफएम मॉड्यूलेटर एंड एफएम डीमॉड्यूलेटर। तो आज के क्लास में कोई पॉइंट या कोई इश्यू समझ में नहीं आया तो वो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हो। आज कोई चीज समझ में नहीं आए तो वो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको यूट्यूब नोट्स में ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर ही दिए हैं मैंने। ठीक है, और इसके जो जो मैंने लेक्चर लिया है, वीडियो लेक्चर में कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। इसको पढ़ो, इसकी स्टडी करो, और कोई इश्यू या कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कशन करो। ओके, थैंक यू।